Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 1 on equality from class 7 civics NCERT syllabus semester 1. So let's continue our chapter 1, that is on equality from class 7th civics. So today we are going to start from page number 9, that is recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. तो आप अब तक ये बात समझ चुके हैं कि किस जाति में हम जन्म लेते हैं, उस धर्म में जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी हम उसे फॉलो कर रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, फिर भले ही पुरुष हो कि महिला हो, ये अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि कुछ लोगों के साथ असमान व्यवहार क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज़ के साथ इसी तरह से जाति और धर्म के अंतर के आधार पर असमान व्यवहार किया जा रहा था। When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris were violated because of the way in which they were treated, by picking on him and making him sweep the school. Because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. However, when the property dealers suggested that they can change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse these suggestions. तो जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उनकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों की डिग्निटी को दोनों की डिग्निटी को अलग अलग तरह से यहाँ पे वायलेट किया गया था। एक तरफ जाति के कारण स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवाया गया और इस दौरान उसके साथियों और टीचर्स से उसकी डिग्निटी को वायलेट किया गया था। उसको इस बात से बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी थी, यानी कि चोट पहुंची थी उसकी डिग्निटी पे। उसे ऐसा महसूस कराया गया कि वह स्कूल के दूसरे बच्चों के बराबर नहीं है। क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय बहुत छोटे थे, वो उस सिचुएशन में बहुत कम काम कर सकते थे, लेकिन जब उनके फादर ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उनको टीचर्स के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया और इस असमान व्यवहार के लिए वो टीचर्स के साथ भी भिड़ गए थे। इसी तरह अंसारीज़ की भी जो डिग्निटी थी उसको वायलेट किया गया था जब उनको वहाँ अपार्टमेंट देने से इनकार किया गया। हालांकि जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलें, लेकिन यह बात उनकी गरिमा और आत्मसम्मान के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. तो ओम प्रकाश और अंसारी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उनको भी दूसरों के जैसे ही सम्मान और डिग्निटी दोनों ही मिलनी चाहिए थी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It does not. But at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वालिटी इन इंडियन, यानी कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह की इक्वालिटी है? तो भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को
समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश में हर व्यक्ति, सभी जाति, मतलब वो भले ही किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, भले ही वो पुरुष हो या फिर महिला हो, सबको समान माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि असमानता मौजूद है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम अपने देश भारत की बात करें, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सभी व्यक्तियों को समान मानने का यहाँ पर सिद्धांत है। वाइल अर्लियर no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. तो हम पहले क्या होता था, पहले लोगों को इस भेदभाव और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कोई कानून नहीं था। अब ऐसे कई काम हैं जो ये देखते हैं कि लोगों के साथ एकदम समान और अच्छा व्यवहार किया जाए। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of the birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, and markets. All person can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. तो समानता के इस मान्यता में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। पहला ये है कि हर व्यक्ति जो है उसको कानून के सामने वो समान है, यानी बराबर है। इसका मतलब ये है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर, यानी प्रेसिडेंट से लेकर जो कांता है, जो कि घर में काम करती थी, किसी और के घर में काम करती थी, तो उस व्यक्ति तक हर किसी के लिए जो लॉ है वो समान है, वो बराबर है, और हर किसी के लिए जो लॉ है उस मतलब हर किसी को लॉ फॉलो करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, या चाहे वो महिला है या फिर वो पुरुष है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति के लिए खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाज़ारों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर छूट है। सार्वजनिक स्थान यानी कि जो पब्लिक प्लेस है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लोग सार्वजनिक रूप से कुओं, सड़कों और स्नान घाटों का भी उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है अनटचेबिलिटी। इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब ये जो अनटचेबिलिटी है इसको एकदम फिनिश कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. तो सरकार ने जिन दो तरीक़ों से संविधान में गारंटी दी गई है कि समानता को लागू करने का उन्होंने प्रयास किया है। पहला कानूनों के माध्यम से और दूसरा सरकारी कार्यक्रमों या फिर आप कह सकते हो योजनाओं के ज़रिए जो वंचित समुदाय हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने कुछ योजना बनाई हैं। भारत में कई कानून हैं जो हर व्यक्ति के समान व्यवहार के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानूनों के अलावा सरकार के पास उन समुदायों और व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाओं की स्थापना की गई है, जिनके साथ कई सदियों से असमान व्यवहार किया जाता है। ये योजनाएं उन लोगों के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए है जिनके पास अतीत में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जिनको पास्ट में उनके साथ अच्छा बिहेवियर या व्यवहार नहीं किया गया हो। Now, one of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch.
Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all states governments to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together and in quite a few places. Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम, ये सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के समय भोजन पकाकर बच्चों को देने का कार्यक्रम है। तो तमिलनाडु इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के अंदर अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कहा था। इस कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट आया है। इनमें ये तथ्य भी शामिल है कि ज़्यादा गरीब बच्चों ने दाखिला यानी एडमिशन लेना शुरू कर दिया और रेगुलर तरीके से वो बच्चे स्कूल जाना उन्होंने शुरू कर दिया। टीचर ने बताया कि पहले बच्चे अक्सर दोपहर के भोजन के लिए घर जाते थे और फिर स्कूल ही नहीं लौटते थे, लेकिन अब स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाता है। उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ और उनकी माताओं, जिन्हें पहले दिन के दौरान अपने बच्चों को घर पर का जो खाना वो जो खिलाते थे, तो अपने काम को वो छोड़ देते थे उनको खाना खिलाने के लिए, लेकिन अब उनको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम की वजह से जो जाति पक्षपात था, छोटी और बड़ी जाति के जो बच्चे थे एक साथ बैठकर अब साथ में खाना खाते हैं और कुछ जगहों पर दलित महिलाओं को भोजन पकाने के लिए भी नियुक्त किया गया है। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गरीब बच्चों की भूख को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर स्कूल आते हैं और पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पेट खाली होता था। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इस समानता के अवसर को बढ़ाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मध्याह्न भोजन की वजह से स्कूल के गरीब बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब बच्चे रेगुलर स्कूल जाना पसंद करते हैं। वहीं हमारे देश में स्कूलों के बीच बड़े अंतर होने की कोशिश जारी है, जो कि गरीबों की उपस्थिति और गरीबों की अनुपस्थिति को कम करती है। तो आज भी देश में कई स्कूल ऐसी हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। तो इन बच्चों को ऐसी विषम परिस्थितियों में मजबूर किया जाता है जिसके कारण उनके आदर सम्मान को ठेस पहुंचती है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities
in India contribute to, and you will read more about this in this book. सो इसका एक मुख्य कारण ये है कि एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे बदलता है। भले ही लोग इस बात से भली भांति परिचित हो कि भेदभाव कानून के खिलाफ है, वो लोगों को धर्म, उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि वे औरत है, विकलांग है, इसके आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। तो ये केवल तब होता है जब लोग विश्वास करना शुरू करते हैं कि कोई भी हीन नहीं होगी, और ये कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो वर्तमान दृष्टिकोण को बदल देता है। एक लोकतांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक निरंतर संघर्ष है, मतलब ये कंटिन्यू हमको इसके लिए स्ट्रगल करना है, और एक है जिसमें विभिन्न लोगों के साथ ही विभिन्न भारत के समुदायों के बारे में इस बुक के बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यूज of equality in other democracies. So you are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही इक्वालिटी के मुद्दे देखने वाले हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं, अदर देन डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं। तो अगर आप शायद सोच रहे हैं कि क्या भारत लोकतांत्रिक देश है पर जिसमें असमानता है, तो जहाँ समानता के लिए अभी भी स्ट्रगल जो है वो जारी है। सच्चाई ये है कि दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक देशों में समानता का मुद्दा अभी भी जारी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमको दिया गया है, अगर हम बात करें तो जो यूएसए यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी जिनके पूर्वज गुलाम थे, स्लेव थे, जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था, आज भी जारी है और वे अपने जीवन का वर्णन काफ़ी हद तक बताते हैं कि उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता था। तो इस स्कूल ने इस तथ्य के बावजूद कि इसमें एक आंदोलन था जो 1950 के दशक के अंत तक अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अधिकारों के लिए वो लोग धक्का दे रहे थे, मतलब वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको जो उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में कानून के माध्यम से समानता से इनकार किया। एग्जाम्पल के लिए, जब गरीब बस से यात्रा करते हैं तो उन्हें या तो बस की ख़राब जगह पर जाके बैठना पड़ता था, या अगर वो किसी जगह पर बैठे हैं और सडनली उनके पास कोई अगर जो वाइट इंसान है वो आके खड़ा हो गया, गोरा इंसान आके खड़ा हो गया है, तो उसको अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी, उसको वहाँ से खड़ा हो जाना पड़ता था ताकि वो वाइट मैन को वहाँ पे जगह दे सके। रोज़ा पार्क्स 1913 to 2005 was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, and national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools, specially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continued to be among the poorest in the country.
Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private school. तो यहाँ पे हमको एक रोज़ा पाक करके लेडी है, उनके बारे में एग्जाम्पल दिया है। तो रोज़ा पाक एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। अपने पूरे दिन के काम से थकी हुई थी, तो उसने 1 दिसंबर 1955 को जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी तो अचानक से एक जो वाइट मैन है वो आके खड़ा हो गया। तो उन्होंने अपनी सीट देने से उसको मना कर दिया और उस दिन उसने इनकार किया, लेकिन फिर से उसी के कारण एक बड़ा आंदोलन, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया। अफ्रीकी अमेरिकी के साथ इस असमान व्यवहार को ठीक करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक आंदोलन हुआ जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाने लगा। 1964 का ये सिविल राइट एक्ट धर्म, राष्ट्रीय मूल और कास्ट, इन सबके भेदभाव को प्रोहिबिट यानी निषेध करने के लिए बनाया गया था, ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। तो ये भी कहा गया था कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए स्कूल भी खुलेंगी, उन्हें विशेष रूप से स्थापित किया जाएगा। अब अफ्रीकी अमेरिकियों की संख्या देश में काफ़ी ज़्यादा थी। ज़्यादातर ये बच्चे केवल उन सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते थे जिनके पास कम सुविधाएं थी और क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते थे। हालांकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनके पास हाई क्वालिफाइड टीचर्स थे। नाउ एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हमको कुछ जो आर्टिकल 15 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में कुछ बताया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, तो राज्य केवल धर्म, जाति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, जैसे धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, तो इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विच रिगार्ड टू access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। तो कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक मतलब ये सारी चीज़ें भी उनको अलाउड होनी चाहिए, उस पर बैन नहीं होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा जो कुएं हैं, वेल्स वगैरह, टैंक, स्नान घाट, सड़कें और सार्वजनिक जो रिजॉर्ट है, इन जगहों का भी उपयोग पूरी तरह से आंशिक यानी कि पूरा, होली और पार्टली ये राज्य की निधि से बाहर रखा गया था, आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है, मतलब वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल 15 में बताया गया है। नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on the existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in a democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld.
तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। हमेशा ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र के विचार का विस्तार करने और मौजूदा मुद्दों के साथ साथ नए मुद्दों पर समानता की एक बड़ी मान्यता के लिए जोर देते हैं। इसके लिए केंद्रीय सभी व्यक्तियों की समान मान्यता के लिए और उनकी गरिमाएं बनाए रखने के लिए अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ये संघर्ष चालू है। इस किताब में हमने पढ़ा और आगे भी पढ़ेंगे कि समानता का ये मुद्दा लोकतांत्रिक भारत में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। जैसे हमने कांता की जो स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि उसका एक दिन किस तरह से चल रहा है। तो वो एक डे भी, मतलब एक दिन भी एक नॉर्मल इंसान को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जैसा कि आप इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा, आप समझेंगे, तो इस बारे में सोचें कि क्या सभी व्यक्तियों की समानता और उनकी गरिमा यानी कि जो डिग्निटी है उसको बनाए रखने में हम सक्षम हैं, हम कैपेबल हैं इस चीज़ को मेंटेन करने में। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।